میرا شوہر روزانہ مسجد میں جا کر مفت کی افطاری کرتا، جبکہ میں گھر میں بھوکی بیٹھی رہتی۔ میرا شوہر مہینے کا 40,000 کماتا، مگر وہ اتنا کنجوس تھا کہ افطاری کے وقت بھی گھر کچھ نہ لاتا۔ اسے تو میری فکر ہی نہ ہوتی۔ ایک روز شوہر کے کپڑے دھونے لگی تو اس کی قمیض میں سے 500 کا نوٹ نکل آیا۔ میں بڑی خوش ہوئی۔ تبھی میں وہ 500 کا نوٹ اٹھا کر بازار سے کچھ کھانے کو لینے چلی گئی، مگر دکاندار نے جو ہی وہ 500 کا نوٹ دیکھا تو مجھے واپس کر دیا اور مجھے مفت میں بہت سارا سامان دے کر بولا کہ بی بی جی آپ یہ مفت لے جائیں۔ میں بڑی حیران ہوئی اور وہ 500 کا نوٹ لے کر گھر واپس آ گئی۔ افطاری کرتے ہی مجھے نیند آ گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں نے تو اپنا سب کچھ۔ میں جب دلہن بنی تو میرے دل میں بہت سے ارمان تھے۔ ہر لڑکی کی طرح مجھے بھی اس رشتے سے بہت توقعات تھیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ شادی میرے لیے ایک روگ بن جائے گی۔ شادی ہر کسی کے لیے خوشیوں کا باعث نہیں بنتی، کبھی کبھی یہ آپ کی پوری زندگی کو برباد کرنے کی وجہ بھی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا جس پر یقین کرنا بہت مشکل ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا شوہر ایک نہایت ہی کنجوس انسان ہے۔ اس نے مجھے تو منہ دکھائی میں بھی کچھ نہیں دیا تھا اور کمرے میں آتے ہی پیسوں کے حساب کتاب اور شادی میں ہوئے خرچے گننے میں لگ گیا۔ جیسے جیسے دن گزرنے لگے مجھے اندازہ ہونے لگا کہ وہ بہت زیادہ کنجوس ہونے کے ساتھ ساتھ مجھ سے ناخوش بھی تھا۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور میرے گھر والے میرے شوہر کو شادی میں وہ سب کچھ نہیں دے سکے تھے جس کی اسے ہم سے توقع تھی۔ وہ ہر بات پر یہی جتاتا رہتا کہ میں خالی ہاتھ اٹھ کر اس گھر میں آ گئی ہوں۔ میں بنا کسی جرم کے اس کے آگے چور سی بن جاتی تھی۔ میرے شوہر کے گھر والے خود میرے لیے رشتہ لے کر آئے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم بہت تنگ دست ہیں، لیکن شاید میرے شوہر اس بات سے انجان تھے اور اسی وجہ سے شادی کی پہلی رات سے ہی میرے رشتے میں ایک تلخی آ گئی تھی۔ میرے شوہر کو شادی میں گاڑی نہ ملنے پر بہت غصہ تھا، جو وقتاً فوقتاً اپنے لفظوں کے تیروں کے ذریعے مجھ پر نکالتے رہتے۔ شادی کے اگلے دن ہی مجھے سسرال میں اپنی اوقات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اگلے ہی دن میرے آگے کپڑوں کا ڈھیر لگا دیا گیا تھا۔ شادی سے پہلے شاید میلے کپڑے جمع کیے جا رہے تھے اور وہ اس قدر زیادہ تھے کہ میں نے صبح جو مشین لگائی تو وہ رات کے وقت جا کر ختم ہوئے۔ سارے دن کی بھوکی پیاسی کپڑے دھو دھو کر جب باورچی خانے میں گئی تو وہاں بچا کچا کھانا ہی پڑا ہوا تھا۔ میری چھوٹی نند نے مجھے آواز دے کر کہا، بھابھی کھانا کھا کے برتن بھی صاف کر لینا۔ باورچی خانے میں تو برتنوں کا بھی ڈھیر لگا ہوا تھا۔ رات 12 بجے جب میں تھک ہار کر کمرے میں پہنچی تو میرے شوہر کا وہی روکھا سا رویہ تھا۔ وہ یہ کہہ کر سونے کے لیے لیٹ گئے، ارے منحوس کہیں کی، تو جہیز میں ایک اے سی تک بھی نہ لے آئی، اتنی شدید گرمی ہے مجھے نیند ہی نہیں آ رہی۔ ان کی یہ بات سن کر تو میں حیران ہی رہ گئی تھی کہ وہ کون سا بچپن سے اے سی میں سوتے آئے تھے، لیکن یہ کہنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں رو پڑی تھی۔ میرے ماں باپ نے بہت مشکل سے لوگوں سے ادھار لے کر میرا جہیز اکٹھا کر کے مجھے دیا تھا۔ ہمارے تو گھر کا پنکھا تک خراب تھا اور میرا شوہر اے سی کی باتیں کر رہا تھا۔ ہم 4 بہنیں تھیں، ایک بھائی تھا۔ میری بڑی بہن کی شادی بھی ابا نے بہت مشکل سے کی تھی اور وہ بھی اپنے سسرال میں ایک مشکل زندگی گزار رہی تھی، لیکن میری بہن کا شوہر بہت اچھا انسان تھا۔ میرا تو شوہر ہی میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، میں کس کے آسرے پر زندگی گزارتی۔ میں ہر رات اپنے ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں سمیٹتے ہوئے گزارتی۔ مجھے بس عزت چاہیے تھی، لیکن میں یہاں صرف ایک نوکرانی تھی جس کی غریبی کا فائدہ اٹھانے کے لیے اسے اپنے بیٹے کے گلے میں زبردستی باندھ دیا گیا تھا۔ میری نند اور میرا دیور میری بے بسی پر خوب ہنستے اور میرا مذاق اڑاتے تھے۔ مجھے ہر قسم کی خوشبو سے الرجی تھی۔ کسی بھی قسم کی تیز خوشبو سے میرے سر میں شدید درد ہوتا اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی، کیونکہ مجھے سانس کی بیماری تھی۔ میری نند اور دیور جان بوجھ کر بہت زیادہ خوشبو کا استعمال کرتے۔ جب بھی میں اپنی ساس سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ ہمیشہ مجھے جھڑک کر ہی کہتی، ہائے تیرے ماں باپ نے اپنی بیمار بیٹی کو ہمارے گلے میں ڈال دیا ہے۔ میرا شوہر ہر وقت فون میں مصروف رہتا۔ میں جیسے ہی کمرے میں جاتی وہ اپنا فون لے کر کمرے سے باہر نکل جاتا۔
और मैं जब भी उसे रोकने की कोशिश करती तो उसका एक ही ताना होता, अरे कमरे में गर्मी बहुत है, जहेज में एक एसी तक नहीं लाई। जबकि मेरी गैर मौजूदगी में वो सारा सारा दिन इसी गर्म कमरे में गुजार देता था। मैं छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस कर रह गई थी। शदीद बीमारी के बावजूद भी सारे घर का काम करती रहती। मैं जब भी अपने घर जाने का कहती तो मेरा शोहर कहता, अपने भाई को बुला लो और चली जाओ। मजबूरन मुझे अपने भाई को बुलाना पड़ता। मेरा भाई एक खूबसूरत और सुलझा हुआ लड़का था। वही तो अब्बा के साथ मिलकर हमारा घर चला रहा था, और मेरी शादी के बाद तो उसकी बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई थी। इस दफा मेरा भाई जब मुझे लेने आया तो मेरी सास का रवैया उसके साथ बहुत ही अच्छा था। मैं हैरान थी कि पहली दफा मेरे मेके में से किसी को इज्जत दी जा रही थी। और फिर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मेरी छोटी नंद मेरे भाई के लिए लाल रंग का शरबत बनाकर लाई। मेरी हैरत को भांपते हुए मेरी सास ने फौरन कहा, अरे आज बहुत गर्मी है ना, मैंने ही सोनिया को कहा था कि वो शरबत बनाकर लाए। भाई के शरबत पीते ही मैं मेके के लिए निकल पड़ी। मेरा इरादा था कि मैं घर जाते ही अपने माँ बाप से बात करूंगी और उन्हें अपने ससुराल वालों के बारे में बताऊंगी, लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि मेरी छोटी बहन का रिश्ता हो गया है। माँ बाप बहुत खुश थे। ऐसे में मैंने उनको परेशान करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैंने अपने होंठ सी लिए। जब मैं घर वापस गई तो मैंने सास को अपनी बहन के रिश्ते का बताया। ये सुनकर मेरी सास बोली, तुझे बस अपनी ही बहन की फिक्र है, कभी अपनी नंद सोनिया के बारे में भी सोचा है? उसकी भी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हारा भाई खैर से अब अच्छा कमाता है। अपने घर वालों से कहो कि आकर सोनिया का रिश्ता मांग लें। ये सुनकर तो मैं दंग ही रह गई थी। मेरा भाई तो पहले से ही मंगनीशुदा था। मैंने जैसे ही अपनी सास को बताया तो वो मुझे झूठा कहने लगी। मैंने उन्हें बताया मेरे भाई की बचपन में ही खाला की बेटी के साथ मंगनी हो गई थी, जिस पर उन्होंने अजीब ही बात कह दी, अरे तुम लोग मंगनी तो तोड़ दो, इसमें कौन सी बात है? सोनिया की शादी तो तुम्हारे भाई से ही होगी, वरना मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। मैंने जब अपने भाई से बात की तो उसने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी मंगेतर से बहुत मोहब्बत करता था और यूं मेरे लिए एक नया मैदान जंग बन गया। अब तक मेरी गरीबी गुनाह थी, अब तो मेरे भाई का इनकार भी मेरा जुर्म बन गया था। जिंदगी बहुत ही बोझ बन गई थी। न ढंग का खाना मिलता था और ना ही आराम। उन्हीं दिनों माह रमजान का महीना शुरू हो चुका था। मेरा शोहर अफ्तारी मस्जिद में करके घर आता। देवर और नंद भी अफ्तारी के वक्त कहीं चले जाते और सास बिना बताए मोहल्ले में किसी के घर जाकर अफ्तारी कर आती। अफ्तारी के वक्त मैं घर में अकेली होती। मेरे पास अपने लिए 1 रुपया तक ना होता और घर में भी खाने को कुछ ना होता। लेकिन एक दिन मेरी किस्मत जाग गई। जैसे ही मैंने सारे घर के कपड़े धोने के लिए जमा किए तो मेरे शोहर के कपड़ों में से अचानक ही 500 का नोट निकल आया। मेरी खुशी की इंतहा ना रही। सोचा कि आज मैं भी मजे की अफ्तारी करूंगी। मैं यही सोच रही थी कि अचानक उस नोट से आने वाली तेज खुशबू की वजह से मेरे सर में शदीद दर्द होना शुरू हो गया। मुझे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी तो कपड़े धोने का काम भी बहुत मुश्किल हो चुका था। अब मुझसे कोई काम नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी दवाई खा लूं। मेरे पास ये दवा मौजूद होती थी। जैसे ही मैंने कमरे में आकर देखा तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी तो दवा खत्म हो चुकी थी। मेरी हालत शदीद खराब होने लगी थी। उस वक्त घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मेरी नंद और देवर दोनों ही सुबह से गायब थे और उनके जाने के बाद मेरी सास भी मोहल्ले में किसी के घर गई हुई थी। अफ्तारी का वक्त भी होने वाला था। मैंने सोचा कि गली के कोने वाले मेडिकल स्टोर से ही दवाई और अफ्तारी के लिए कुछ खाने को ले आती हूँ, ताकि आज मैं भी मजे मजे की अफ्तारी करूँ। मेरे माँ बाप ने जिन हालात में मेरी शादी की थी, मेरे लिए ये जरूरी था कि मैं हर तरह से अपनी शादी को निभाऊं। हम जैसे लोगों में बेटियों को ब्याहते वक्त यही कहा जाता है कि शोहर के घर से मर कर ही निकलना है। हालात कितने ही बदतर क्यों ना हो, वापसी पलटने का कोई रास्ता नहीं होता। मैं भी मजबूरी में इस रिश्ते को घसीट रही थी। मैं यही 500 का नोट लिए मेडिकल स्टोर पर चली गई। मेडिकल स्टोर वाले ने नोट को हाथ में ले लिया और न जाने क्यों मुझे वापस कर दिया और साथ में दवाई भी थमा दी। मैं हैरान थी कि बिना पैसों के वो मुझे दवा क्यों दे रहा है, लेकिन उसने कहा, बहन जी पैसों की कोई बात नहीं है, आप ये दवा मुफ्त ले जाएं।
मुझे तो ये बात जैसे गनीमत महसूस हुई और फिर मैं जल्दी से इफ्तारी के लिए सामान लेकर घर आ गई। जैसे ही इफ्तारी का वक्त हुआ, मैंने रोजा खोलकर दवाई खा ली। मैंने सोच लिया था कि रात अपने शोहर को इस 500 के बारे में बता दूंगी। मेरे शोहर को ये नोट याद भी है या नहीं, क्योंकि वो एक एक रुपया गिनकर रखता था। मैंने नोट अपने तकिए के नीचे छुपा दिया और दवा खा ली। लेकिन दवा खाते ही मुझे सुकून सा महसूस होने लगा और ऐसी नींद आने लगी कि मैं कुछ देर लेटने का सोचकर सो गई। तो जब मेरी आंख खुली तो मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने सारा दिन पता नहीं क्या किया सोचा था, लेकिन एक ही पल में सब कुछ राख हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने घर में खुद को मौजूद नहीं पाया था, बल्कि ये तो कोई और ही कमरा था जहाँ मेरी आंख खुली थी। मैं कमरे में बंद थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ सकी। मैं पागलों की तरह चीख रही थी, लेकिन शायद मेरी जहाँ चीखें सुनने वाला कोई ना था। मुझ पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा था और दिन से रात और रात से दिन हो गया। मैं इस कमरे में तन्हा और बेबस पड़ी थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो चुका था। मेरा शोहर, मेरे घर वाले यकीनन सब मुझे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ तक कैसे आई ये मुझे नहीं याद आ रहा था। समझ नहीं आ रही थी। अगले दिन किसी के कदमों की आहट पर मैं जाग उठी थी, लेकिन दरवाजा खोलने वाला अंदर नहीं आया था। कुछ देर में डर के मारे कोने में दहक कर बैठी रही, लेकिन जब कोई आवाज दोबारा सुनाई ना दी तो मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे को हाथ लगाया तो वो खुल गया। मैं फौरन बाहर निकली। ये एक सुनसान इलाका था। मुझे एक जेरे तामीर इमारत के कमरे में बंद किया गया था, लेकिन किसने और क्यों, ये मेरे लिए एक मुअम्मा था। मैं बहुत मुश्किल से वापस अपने घर तक पहुंची। पैदल चलकर मेरी हालत बिगड़ चुकी थी। जैसे ही मैं अपने घर पहुंची, मेरी सास ने मुझे देखते ही मारना शुरू कर दिया। मुझ पर ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए जिन्हें सुनने की मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मेरी नंद और मेरा देवर मुझे नफरत से देखते हुए अपने कमरों में चले गए थे। मेरा शोहर मुझे नजर न आया। जब मेरी सास ने अपना सारा गुस्सा निकाल लिया तो मुझे सहन में ही छोड़कर अपने कमरे में चली गई। मैं बहुत मुश्किल से उठकर अपने कमरे में गई, लेकिन कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मेरी सांस ही रुक गई। मेरे ही कमरे में मेरी जगह मेरे शोहर के साथ कोई और औरत मौजूद थी। मुझे देखकर मेरा शोहर उठकर आया और धक्का देते हुए कहने लगा, ये कमरा आज से मेरी दूसरी बीवी का है और तू जिसके साथ भाग गई थी वापस उसी के पास चली जा। मैं अपने शोहर के पैरों में गिर गई। मैंने उसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे पत्थर की मूरत बन गया था। मुझे सहन में वापस फेंकते हुए उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। मेरे दिल में जैसे अंगारे जल उठे थे। मेरे शोहर ने मेरी गैर मौजूदगी में मुझे तलाश करने की बजाय दूसरी शादी कर ली थी और मेरी सास ने मेरी बदकिरदारी के किस्से घर घर सुना डाले थे। मैं तो जैसे जीते जी मर गई थी। बहुत देर तक रोने धोने के बाद जब मेरा दिमाग कुछ काम करने लगा तो मैंने सोचा कि फिलहाल नंद के कमरे में पनाह ले लूं। लेकिन उसके दरवाजे पर पहुंचकर जो कुछ मैंने सुना, उसके बाद मुझे कड़ी से कड़ी जोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। मैं जान गई थी कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन मुझे खुद को बेगुनाह साबित करना था, क्योंकि हमारे मुआशरे में घर के एक फर्द की गलती की सजा सारे घर वालों को बराबर से मिलती है। आखिर अगर कोई एक बेटी घर से भाग जाए तो बाकी बेटियां घर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती हैं। मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन मैं जानती थी कि इसकी सजा सिर्फ मुझे ही नहीं मिलेगी, बल्कि मेरी छोटी बहनें भी मेरे माँ बाप की दहलीज पर ही बैठी रह जाएंगी। मैंने ठान लिया था कि मैं इनको सजा दिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी। सब अपने कमरों में बंद हो चुके थे। मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने बावर्ची खाने में बैठकर ही रात गुजार दी। सुबह सहरी के वक्त भी कोई ना उठा। मैंने उठकर पानी और खजूर से रोजा रखा और फिर नमाज पढ़ने के बाद घर के कामों में लग गई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मेरा शोहर अपनी नई नवेली दुल्हन के नखरे उठाने में मसरूफ था, जो कि शायद कोई अमीर औरत थी। मुझे अब बस खुद को बेगुनाह साबित करना था। अब मुझे किसी रिश्ते से कोई उम्मीद बाकी ना रही थी। मैं मेडिकल स्टोर वाले के पास पहुंच गई। मैंने उसको जब सारी बात सच सच बताने को कहा तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया। वो बेचारा बेकसूर था। उसने मुझे बताया कि देखिए बहन जी, मुझे तो ये बताया गया था कि आप ज़हनी मरीजा हैं, जो खुद ही नोटों पर खुशबू लगाती हैं और फिर दवा लेने के लिए निकल पड़ती हैं,
और मुझے आपको ज़हनी सुकून की दवा देने के लिए कहा गया था, इसलिए मैंने आपको नींद की दवाई दे दी थी। बेचारे मेडिकल स्टोर वाले ने हमदर्दी में आकर मुझे नींद की दवाई दे दी थी, जिसके पैसे भी उसे बाद में भर दिए गए थे। मैंने जब उसे सारी हकीकत बताकर खुदा का वास्ता दिया तो वो मेरे हक में गवाही देने के लिए तैयार हो गया। मैं घर लौटी तो मेरे सर पर जैसे एक धमाका और हो गया। मेरे शोहर का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी दोनों टांगे जाया हो गई थी। घर में सिर्फ मेरी नंद मौजूद थी, जिसने बताया कि सब लोग अस्पताल गए हैं। मेरे शोहर की दूसरी बीवी जहेज में गाड़ी लेकर आई थी और वो दोनों घूमने के लिए जा रहे थे कि एक ट्रक के साथ उनकी गाड़ी जा लगी और उसकी दूसरी बीवी का मौके पर ही इंतकाल हो गया, जबकि मेरे शोहर की दोनों टांगे जाया हो गईं। ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैं भी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ी। मैं भूल चुकी थी कि मेरे साथ क्या कुछ किया गया है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरा शोहर इस वक्त मुश्किल में है। मैं जैसे ही अस्पताल पहुंची तो मेरा शोहर मेरे हाथ पकड़कर रोने लगा। मैं जानती थी कि उसका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन वो रोते हुए मुझसे माफिया मांगने लगा। मेरे घर वालों को जब खबर मिली तो वो लोग भी चले आए। उन्हें मेरी गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे शोहर ने जानबूझकर उन्हें बेखबर रखा था। मेरे शोहर ने सबके सामने ये इतराफ किया कि उसने मेरी नंद से कहा कि एक नोट पर खुशबू का ढेर लगवाया था। वो जानता था कि मुझे खुशबू से एलर्जी है, इसलिए उसने जानबूझकर ये फैसला किया कि वो मेरी इस कमजोरी का फायदा उठाकर मुझसे जान छुड़वाकर किसी अमीर लड़की के साथ शादी करेगा। और उसके लिए उसे एक अमीर लड़की भी मिल गई थी, जो कि उम्र में भी उससे काफी बड़ी थी और पहले से तलाक याफ्ता भी थी। लेकिन मुझे रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मेरी सास को मेरी सूरत में नौकरानी मिली हुई थी और वो अपने बेटे की दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए एक दिन जब मैं कपड़े धोने लगी, इस तरह वो नोट मेरे हाथ में आया, जिसकी खुशबू से मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। मेडिकल स्टोर वाले को मेरे शोहर ने पहले ही बता दिया था कि मेरी बीवी दिमागी मरीजा है और वो खुद ही नोटों पर खुशबू लगाकर सामान लेने निकल पड़ती है। अगर वो तुम्हारे पास आए तो तुम उसे नींद की दवा दे देना, ताकि उसको सुकून आ जाए, और उससे पैसे ना लेना, पैसे मैं दूंगा। इसलिए मेडिकल स्टोर वाले ने वो नोट हाथ में लेते ही खुशबू महसूस की। उसने मुझे नींद की दवाई दे दी और जैसे ही मैं घर आई तो थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई और मेरे शोहर ने मुझे उठाकर एक और जगह ले जाकर वहाँ बंद कर दिया और खुद ही 2 दिन तक वहाँ बंद रखा। 2 दिन के बाद उसने किसी आदमी के जरिए मुझे वहाँ से रिहा करवा दिया, लेकिन तब तक मुझ पर बदकिरदारी का धब्बा लग चुका था। मेरी सास एक बदकिरदार बहू को कबूल नहीं कर सकती थी और मेरे शोहर का मंसूबा कामयाब हो गया था, लेकिन मेरी नंद ये सब जानती थी। लिहाजा जब मैं रात को सोने के लिए उसके कमरे के बाहर पहुंची तो मैंने उसे किसी से कहते सुना कि उसके भाई ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, ताकि वो एक अमीर औरत से शादी करके अपना मुस्तकबिल संवार सके। लेकिन उसका मुस्तकबिल संवारने की बजाय खत्म हो चुका था। कुदरत ने उसके लिए यही लिखा था, वो इससे ज्यादा किसी सूरत हासिल नहीं कर सकता था। मेरे शोहर की दोनों टांगे जाया हो गईं, तो उसे एहसास हुआ कि वो अपनी औकात से ज्यादा उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था और अपने नसीब से ज्यादा पाने की जुस्तजू कर रहा था, लेकिन वो सब उसके नसीब में नहीं था। जब उसने मुझसे माफी मांगी तो मैंने उसे खुले दिल से माफ कर दिया। मेरी सास भी सारा सच जान चुकी थी, वो भी मुझसे माफिया मांग रही थी। मेरे रब ने खुद ही मुजरिमों को सजा दे दी थी। अब मेरे पास उन्हें देने के लिए सिर्फ माफी थी। अब खुशियाँ मेरी मुंतजिर थी, क्योंकि मेरा शोहर अपाहिज जरूर हुआ था, लेकिन मेरी नजर में अब वो एक मुकम्मल इंसान बन चुका था। अब मेरे शोहर ने जॉब छोड़कर गली में एक करियाने की दुकान बना ली है और हम हंसी खुशी रह रहे हैं।